جی جناب، یہ معاملہ تو آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ کراچی میں بارشوں کی کیا صورتحال ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ این ڈی ایم اے کے آنے کے بعد جب یہ انشاءاللہ نالے صاف ہو جائیں گے تو سیلابی صورتحال اتنی شدید نہیں ہوگی جیسے گزشتہ بارتوں میں ہوتی آئی ہے. لیکن چونکہ کراچی کا مسئلہ صرف علائشیں نہیں ہیں، وہ ناجائز تجاوزات بھی ہیں جو کہ نالوں کے اوپر تعمیر ہے. وہ نالے جن کو 120 فٹ چوڑا ہونا چاہیے تھا وہ 10 فٹ چوڑے کچھی آبادیاں وہاں پر قائم ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج چونکہ عید الاضحیٰ کا تیسرا روز ہے اور ملک بھر میں شہری آج بھی قربانی کر رہے ہیں. اور عید کے پہلے اور دوسرے روز شہریوں کو مختلف علاقوں سے علائشیں برف نہ اٹھائے جانے کی شکایات رہی، جیسے ابھی ہم لوگ بات بھی کر رہے تھے. اور ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو مقامی انتظامیہ کی جانب سے علائشیں اٹھانے کے کام میں کافی سستی نظر آئی. انتظامیہ کراچی میں مختص مقامات پر قربانی کرانے میں بھی ناکام رہی. الٹا قربانی گاہوں میں علائشوں کا ڈھیر لگ گیا ہے اور اولڈ سٹی ایریا کے مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کے خراب نظام کی وجہ سے مزید وہاں پر گندگی پھیل گئی ہے. جی جناب، گارڈن، رام سوامی، رنچھوڑ لائن، جوڑیا بازار کے اطراف علائشوں اور گندگی سے مقامی رہائشیوں کا رہنا دو بھر ہو گیا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ بظاہر مرکزی سڑکوں اور چاراؤں کو وہ وہاں سے انہوں نے علائشیں بھی اٹھا لی ہیں اور کچرا کنڈیوں سے بھی انہوں نے علائشیں اٹھا لی ہیں. لیکن جو گلیوں میں علائشیں پڑی ہیں وہاں تک ابھی تک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ نہیں پہنچا. ویسے مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ کون سا طریقہ ہے. کل جو گلشن کے لوکل ایم پی اے ہیں ارسلان تاج گھمن، انہوں نے بھی کل اپنے تئیں ایک علائشیں اٹھانے کی ایک تحریک شروع کی. لیکن ہم نے اس کے باوجود دیکھا کہ لوگوں نے اب قربانی کے جانوروں کی علائشیں سڑک پر پھینکی ہوئی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اتنی محبت سے جب آپ سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں اور اتنی محبت سے جانور کو لاتے ہیں، اس کی قربانی کرتے ہیں، تو اتنے برے طریقے سے اس کی علائشیں پھینک دینا. خیر جی، اس وقت لاہور میں کیا سچویشن ہے جانیں گے. ہمارے نمائندے بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر، یہ بتائے گا کیا سچویشن ہے لاہور میں؟ اب تو عید کا تیسرا روز ہے، یہ علائشیں پراپر طریقے سے ڈمپ کر دی گئی ہیں؟ ہاں جی بالکل، عید الاضحیٰ کا آج تیسرا روز ہے. آج بھی لوگ جو ہے سنت ابراہیمی ادا کریں گے. 2 دن میں لاہور شہر میں علائشیں کچھ مقامات پر نظر آئیں، لیکن لاہور ویسٹ مینجمنٹ جو کمپنی ہے اس کے عملے نے لاہور کو بالکل مکمل طور پر صاف کیا. پانی کے ساتھ صفائی بھی کی جاتی رہی، علائشیں بھی اٹھائی گئیں. 3 روز میں تقریباً 20,000 ٹن کے قریب جو علائشیں ہیں وہ اٹھائی گئی ہیں. اور کچھ مقامات پر عرق گلاب سے چھڑکاؤ بھی کیا گیا تاکہ جو تعفن نہ پھیل سکے. لاہور کی سڑکیں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر کوئی گندگی ہو، کوئی بدبو آ رہی ہو، تعفن پھیلا ہو. تمام لاہور جو ہے اس وقت بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. اور اگر موازنہ کیا جائے لاہور کا کراچی کے ساتھ تو اس وقت لاہور بالکل مکمل طور پر پیرس دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ کراچی میں جیسی صورتحال ہے، کل بارش بھی لاہور میں ہوئی. بارش کے بعد کچھ مقامات پر پانی بھی اکٹھا ہوا، لیکن اب وہاں ان مقامات سے پانی بھی اس کی نکاسی بھی ہو چکی ہے. اور کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں پر کوئی گندگی کے ڈھیر ہو. اس وقت لاہور میں علائشیں یا قربانی کے دوسرے جو جانوروں کی اعضاء ہیں وہ بالکل مکمل طور پر نظر نہیں آ رہی اور صاف ستھرا لاہور اس وقت دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. جی صحیح، بہت شکریہ جی. بابر خان ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی کی کیا صورتحال ہے؟ ہمارے نمائندے آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف رخ کرتے ہیں. جی آصف، مجھے بتائیے گا، آپ کے ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں کافی علائشیں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ کون سا علاقہ ہے؟ شفاعت، بالکل یہ لیاقت آباد 4 نمبر کا علاقہ ہے. یہاں پر 1 منٹ بھی کھڑا ہونا دشوار ہے اور ہم آدھے گھنٹے سے یہاں پر پوری ہماری ٹیم کھڑی ہے. اچھا، تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ دیکھیں یہاں پر جو علائشیں ہیں لیاقت آباد 4 نمبر پر، وہ فی الحال یہاں پر ہیں. کہ صرف لیاقت آباد میں نہیں، شہر کے بیشتر مقامات پر اس وقت یہی صورتحال ہے. اب سے کچھ دیر قبل جب بیپر چل رہا تھا ہمارے لاہور کے نمائندے کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ لاہور میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے، لیکن کراچی اس سے بالکل مختلف ہے. اس وقت میں موٹر سائیکل کے اوپر آیا ہوں اور یہ صورتحال ہے کہ میں نے ماسک نہیں پہنا تھا، تو جگہ جگہ سے بدبو ہے. پورے شہر میں اس وقت یہی صورتحال ہے. کوئی جراثیم کش اسپرے نہیں کیا، کہیں کسی مقام پر جو ہے وہ چونا وغیرہ بھی اگر کیا ہے تو وہ علاقے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے. لیکن جو علائشیں ہیں وہ تاحال جگہ جگہ موجود ہیں. گند اس وقت جو ہے وہ جگہ جگہ ہے. یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جانوروں کے مطلب جو قربانی کے جانور ان کے سر بھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ رہنے والے لوگ مطلب ان کے پاس کیا جو ڈمپنگ، جو کوئی بھی جو کچرا جہاں پہ ڈال سکتے ہیں وہ بہت دور ہے کہ لوگوں نے خود یہ زحمت نہیں کی کہ جا کے جو علائشیں ہیں اس کو پراپر کسی جگہ پہ ڈمپ کریں. دیکھیں، ڈمپنگ پوائنٹس کراچی میں بنائے نہیں گئے ہیں. کراچی میں ٹوٹل 4 ڈمپنگ پوائنٹس ہیں، کورنگی میں، شرافی گوٹ میں، اور اس کے علاوہ 2 جو ہیں وہ سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے پہ ہیں. تو ڈمپنگ پوائنٹس دور ہیں، لیکن جو یہاں پر مقامی انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے یہ علائشیں اٹھانے ان کی ذمہ داری تھی اور ہے بھی. لیکن
काफ़ी देर से हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमें ऐसी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दी जिसने यहाँ से आलाइशें उठाई हो। तो ताहाल इस वक्त यही सूरत हाल शहर के बेशतर इलाकों में है कि वहाँ से जो आलाइशें हैं वो नहीं उठाई जा रही। जो इलाकाई अब जो जैसे कुर्बानी है, कुर्बानी गलियों में हुई है, यहाँ रोड पर नहीं हुई, लेकिन जो आलाइशें हैं वो यहाँ रोड पर फेंकी गई हैं और फिर यहाँ से रोड से भी आलाइशें नहीं उठाई जा रही। इससे ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल गलियों के अंदर की है। अंदर जो है वो बदबू भी ज़्यादा है और ब्लड भी है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान हमें इस तमाम तफसीलात से आगाह करने का। और अगेन सारी हुकूमत की नहीं हो सकती, जो अवाम है पहले वो खुद ये सीखे कि जानवर की सिरी या उसकी जो भी ओजरी वगैरह है वो आपको एक शॉपिंग बैग में बंद करके और अच्छी तरह उसको बांध के आपको किसी ऐसे, अगर आपने सड़क पे भी रखनी है तो ऐसे मकाम पे रखें कि जहां उसको जानवर चीर फाड़ ना सके और उससे ताफुन न अभी देखिए यहाँ पे आवारा कुत्ते भी, अभी तो हम सुबह में कव्वे देख रहे हैं यहाँ पे। और शफात की वो जगह है, डंपिंग स्टेशन जरूर कराची में 4 जगहों पर है, लेकिन कचरा दान बड़े रखे जाते हैं। सो सिर्फ इतनी सी जहमत करनी होती है कि आप बड़े बैग में जो आलाइशें हैं, ठीक है, डंपिंग बैग्स भी आते हैं, बिन बैग्स भी आते हैं, उनमें डाल के आप एटलीस्ट सिर्फ उन बिन्स में जाके डाल दें। आप लोगों ने सिर्फ ये काम करना है। लेकिन अगर आप इतने अच्छे तरीके से सुन्नत इब्राहिमी पे काम भी करते हैं, अमल भी करते हैं, और उसके बाद आप जानवरों की आलाइशें, जानवरों के सर ऐसे सड़क पे लाके कचरे में फेंक देते हैं, तो फिर आप खुद सोचें कि जो आपने इतनी एफर्ट की है उसका क्या फ़ायदा हुआ है। जी जनाब, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर जनाब सईद गनी साहब। सईद गनी साहब से उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। सईद गनी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज ईद का तीसरा दिन है और मुझे बताइएगा कि अभी जैसे हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, कराची के कई इलाकों की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और सफाई का बंदोबस्त मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पे अब जो डंपिंग पॉइंट्स हैं वहाँ से भी अभी तक आलाइशें नहीं उठाई गई, तो इंतज़ामात वैसे डिज़ाइन क्या किए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से? देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखें कि ईद उल अज़हा के मौके पर जो ये ऑफन कलेक्शन की जो एक एक्सरसाइज होती है, जो पूरा ऑपरेशन होता है, ये बहुत बड़ा काम होता है और ख़ास तौर पर कराची जैसे बड़े शहर में ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है और इसके लिए हर साल भरपूर तैयारी की जाती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखते हैं कि कराची में जो रेगुलर आपकी गार्बेज कलेक्शन होती है वो भी अच्छी खासी होती है और अगर ईद के ये 3 दिन आप मिला लें तो ये दुगने से ज़्यादा हो जाती है जो आपके यहाँ गार्बेज जनरेट हो रहा होता है। तो उस पूरी तादाद में उस सारे गार्बेज को प्रॉपरली उठाना और उसके बाद प्रॉपरली इसको डिस्पोज ऑफ करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है और उस पर अच्छे खासे एफर्ट्स लगाए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी कोशिशें भरपूर की गई। कल हमें कुछ शिकायत आई थी कि जहाँ पर जितनी इक्विपमेंट और मशीनरी होनी चाहिए थी वहाँ कहीं कुछ मकामात पर वो कम थी। आज हमने उस इशू को किसी हद तक एड्रेस कर लिया था और आज निस्बतन हमारा जो निज़ाम था, जो ऑपरेशन था, वो बेहतर अंदाज में चला है। इसमें तरीक़ेकार मैं आपको बता दूं कि एक तो कराची में मुख्तलिफ यूसीज़ हैं जिनकी तादाद 200 से ज़ायद है। उन यूसीज़ को छोटी गाड़ियां दी जाती हैं और वो अपने इलाकों से, मोहल्लों से ये आलाइशें उठाते हैं और कराची शहर के जो 78 या 79 कलेक्शन पॉइंट्स कराची शहर में बनाए गए थे वहाँ पर लाकर ये ड्रॉप करते हैं और वहाँ से फिर बड़े डंपर्स के ज़रिए इनको पिक किया जाता है और फिर लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता है या कराची शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेंचेस बनाई गई थी, उन ट्रेंचेस में इनको प्रॉपरली दफन कर दिया जाता है। तो इसमें कहीं थोड़ी बहुत कोताही ज़रूरी होगी। जो टीवी पे अक्सर दिखा रहे होते हैं कोई चैनल हमारे, उसमें देखें जब कुर्बानी लोग करते हैं तो अक्सर लोग खुद ही कुर्बानी करने के बाद एक ट्रॉली के अंदर वो आलाइश रखते हैं और अपने घर से बाहर कहीं भी जाकर वो फेंक देते हैं, बजाय इसके जो डेजिग्नेटेड कचरा कुंडी होती है, डस्टबिन होती है, उसमें फेंकने के, अपनी गली फेंकने के। जी सईद गनी साहब, आप से बात बिल्कुल सही, क्योंकि हमने भी यहाँ पे देखा कि लोग गैर जिम्मेदारी का सबूत बहुत ज़्यादा यहाँ पे देते हैं। अच्छा, ये कहेगा कि आज जो है ईद का तीसरा दिन है और हुकूमत ने हर यूसी में मखसूस मकामात पर कुर्बानी की हिदायत जारी की थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लोगों ने इन हिदायत को भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है और समहा हुकूमत भी इस पर अमल दरामद लोगों से नहीं करवा सकी। तो इसकी रीज़न क्या बनी? देखिए, इसकी मेरी राय में 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो शायद हर शख्स को ये पता नहीं था, मेरा ख्याल है, मुमकिन है कि काफ़ी लोगों को पता हो लेकिन कई लोगों को शायद पता नहीं था। दूसरी वजह उसकी ये है कि जब कुर्बानी कोई भी शख्स करता है तो ना सिर्फ ये कि जानवर को ज़िबा करता है बल्कि उसका गोश्त वहीं पर वो काटने के बाद, तैयार करने के बाद फिर अपने घर ले जाकर उसको तकसीम करता है। तो यहाँ थोड़ा सा शायद हैसल थी लोगों के लिए कि वो पहले तो जानवर को अपने घर से उस मकाम पे ले जाएं और उसके बाद वहाँ कुर्बानी करने के बाद वो जो गोश्त
काफ़ी बड़ी हेवी उसकी वजन होता है अच्छा खासा, वो शायद कई जगहों में मनों में भी होता होगा अगर बड़ा जानवर है, तो उसको फिर दोबारा अपने घर पे लाना शायद ये एक मुश्किल काम था जिस पर कम लोगों ने जो है वो तवज्जो दी और उस तरफ नहीं गए। लेकिन बहरहाल हमने इस हकीकत के बावजूद भी कि जो जगह हमने डेजिग्नेट की थी वहाँ लोग नहीं आए, जहाँ जिसने कुर्बानी की हमने कोशिश की कि वहाँ उस मसले को हल कर लिया जाए। अच्छा सर, अब एनडीए में जो है वो नालों की सफाई शुरू कर रही है, बारिश मुतवक्के है, तो आपको क्या लगता है इससे सूबाई हुकूमत का काम तो मुतासर नहीं होगा? और सूबाई हुकूमत की कोई कोऑर्डिनेशन है अभी एनडीए में के साथ? क्योंकि तजावज़ात के हवाले से आपका भी मौक़िफ़ आता रहा है और अब चूँकि एनडीए में यहाँ मौजूद है, तो आपको लगता है कि तजावज़ात के ख़ात्मे के हवाले से अब सिंध गवर्नमेंट जो है वो एनडीए में के साथ मिल के काम कर सकती है? देखिए, अभी तक जो मालूमात मेरे पास हैं, कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि सीएम हाउस में एक मीटिंग पहले हो चुकी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने सामने रखी जो कराची में पिछले जो बारिश की वजह से मसाइल पैदा हुए थे, कहाँ मसाइल पैदा हुए थे। तासुर तो ये था कि पूरा शहर डूब गया, तो हमने वो एग्जैक्टली वो जगह मकामात बताए कि इतनी जगहों पर प्रॉब्लम हुआ था। एज होल अगर आप कहीं शहर में तो ऐसा नहीं था मसला, वो बताया। फिर जहाँ प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजूहत क्या थी हमने वो भी बताई। तो अब उसको मद्देनज़र रखते हुए नालों की सफाई का एक अमल तो पहले से जारी था। अब उसमें जो 3 बड़े नाले हैं, 3 बड़े काम हैं जो एनडीए में कल आज से शुरू करेगी। उसमें गुज्जर नाला है, उसमें एक सीबीएम है और एक गालिबन औरंगी का नाला है। मैं तो हो सकता है थोड़ा रास्ते में कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन औरंगी टाउन का एक है। तो उस पर ये जहाँ काम आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें इंक्रोचमेंट की जो रिमूवल है वो शामिल नहीं है। अलबत्ता नालों की सफाई करते हुए अगर बीच में कोई ऐसी तजावज़ात आती हैं जिनको हटाए बगैर सफाई मुमकिन ना हो, तो वो तो हटा दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूँ कि नालों की सफाई जो है इस मसले का हल नहीं है। मुस्तकिल हल उस सारी इंक्रोचमेंट का हटना है, ताकि नाले की जो कैपेसिटी है पानी उठाने की वो बढ़ सके और असल में जो नाले की विड्थ थी वो बहाल कर सकें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो ये सफाई ज़ाहिर है कि तकरीबन हर साल होती है और उसके बाद फिर वहीं का वहीं आके सारा मसला रुक जाता है। तो इसका मुस्तकिल हल पहला तो ये कि इंक्रोचमेंट रिमूव हो और फिर रिहेबिलिटेशन उन सारे नालों की और इंक्रोचमेंट बराबर हो जाती है उसको रोकने के लिए उनके सईद शुक्ला जी, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि नालों की सफाई एक सोल्यूशन है, बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ये कि जो इंक्रोचमेंट है इन नालों के पास भी उनको किस तरीके से मतलब खाली कराया जाए तो वो बेहतर होगा और यही अल्टीमेट सोल्यूशन है कराची का।